teacher and a very good researcher. In fact, she has contributed in various outreach programs, in fact, and she has worked with one of the very popular publication group, that is Prentice Hall of India, PHI. She has worked as an editor over there also. So it's a remarkable experience in publication, in research, as well as a remarkable contribution in outreach programs. She has been given various awards, and one such award was Women Prestige Outstanding Women of the Year award that was given to her, in fact. So her complete CV is available on the web page of the Department of Teachers Training and Non-Formal Education of Jamia Millia Islamia. If you want to know something more about her, definitely you can know about her more. But at this juncture of time, I am relying on this short introduction. And with this short introduction, I'm handing over the session to Dr. Iram Khan. And Iram ma'am, my participants are very interactive. In fact, they really want to learn. So all the resource persons have praised them for their quest of knowledge. So I'm quite sure you will also enjoy their company. So it's over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Professor Sajid. Actually, it's always a pleasure to be the part of the programs of AMU. And it is good to know that the participants are very inquisitive and they are asking questions, because whenever we are discussing on any issue which needs a lot of discussion, and if the participants are passively listening, then maza nahi aata hai. So it's always good that we can keep on interacting. Because today's session is on open educational resources, so there is a lot of requirement of discussions. Because what I perceived by the know-how of what exactly the teachers know about OERs is that there are a lot of things which are confusing for them. So if there is, at any juncture of time, if you find anything confusing in due course of my lecture or my session, actually I don't believe in lecturing. I will be going live and showing things. And if side by side, people can also open their machines and do the things along with me, they can learn a lot. So you can ask questions at any point of time. You don't have to wait for the end and for the question answer session, because the things which are in between, you mark, you can ask questions at that moment, and then the answering will also be subsequent. So let us start the session, which is on open educational resources. And I have planned that in this session on open educational resources, I will also show you a few places which are meant for the placement of the content, which are open educational. Like first of all, we should like discuss on the point that what are these open educational resources. So I have got a PPT. Although I don't believe much in showing the PPTs, but still, because things are written there, so it will be easier for you to comprehend. So I'm going to just share my PPT. And please let me know, uh, is it possible for me to be bilingual, or shall I continue in English? Yes, ma'am, bilingual. Okay. Is there any participant who has any difficulty in understanding Hindi? Then I can go perfectly in English. Because I have seen that in the programs of AMU, lots and lots of people from varied parts of India are there. So that's why I always ask this question before going bilingual. Okay, so ठीक है, अगर आपने इजाजत दी है तो I will be a little bit bilingual. So the PPT is this. No, not this. Just a second. This one. So this is the open educational resources work. Basically, I will be discussing on, just a minute again. I will be discussing on the points related to that what exactly OERs are. Then if you know that what are the OERs, then how to identify them and search them from the internet. Then what exactly is the way to access the OERs? Use kaise kar sakte hain? Then there are certain places which are meant for providing material or resources completely OERs. So that if you go to that site, you have to be very much like you can rest assured that that material which is placed there is OER. So we will talk about a few of those also. Then I will be focusing on how to create the OERs.
identifying, accessing, and then using them. And once you have used some OERs and created something, how to transform a resource, a normal resource, into an OER. That is also something which I wish to discuss. So first of all, what exactly you mean by an OER? OER का मतलब है, इसका जो full form है, that is Open Educational Resource. And if you want to to understand that any resource which is considered as OER, how it is different from a normal resource, because कुछ भी जो भी ई कंटेंट की बात हो रही है यहाँ पे, जो भी ई कंटेंट है, ई रिसोर्स है, वो एक नॉर्मल रिसोर्स है जिसको अगर हमने यूज कर लिया, मान लीजिए मेरा कंटेंट है जिसको मैंने इंटरनेट पे डाल दिया, किसी साइट पे डाल दिया, गूगल इमेजेस पे या यूट्यूब पे या कहीं पे भी डाल दिया, उसे OER डिक्लेयर नहीं किया, और आपने मेरे उस कंटेंट को यूज कर लिया अपना कुछ नया बनाने के लिए, नया कंटेंट बनाने के लिए, और मुझे बाद में पता चला या मुझे किसी सोर्स से आइडेंटिफाई हो गया, I can claim, I can even go into the court of law that somebody has plagiarized, somebody has taken my content without my permission, and if I am requiring to that person to pay, then payment भी नहीं किया है. ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं कर सकती हूँ. लेकिन अगर मैंने अपने कंटेंट को जिसे बनाया है उसको OER डिक्लेयर कर दिया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, और तब उसको किसी भी वेबसाइट पे डाला, उसके बाद फिर मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी एंड यूजर को, ना तो कोई पेमेंट करना है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है. तो ऐसा कंटेंट, ऐसा रिसोर्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसे यूज करने के लिए ना तो परमिशन लेने की जरूरत है एंड यूजर से, एंड यूजर को बाय द क्रिएटर, और ना ही किसी तरह का पेमेंट करने की जरूरत है, उसमें कोई भी तरह का चेंज पॉसिबल है, इस तरह के जो कंटेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. और ये रिसोर्सेज किसी भी तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेक्स्ट फाइल जिसे कहते हैं, कोई गेम हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है. अब अगर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी, एक तो है रिसोर्सेज, और अगर उसी में हम सॉफ्टवेयर का कैटेगराइजेशन कर देते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर हैं उनको फिर हम बोल देते हैं कि वो सॉफ्टवेयर फॉस हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो जिनसे कि हम कुछ फर्दर क्रिएट, कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की मदद से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं. तो ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं या फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हम फॉस कहते हैं. तो अभी हम लोग पहले फोकस करने वाले हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज पे. फर्स्ट के बारे में या जो टूल्स हैं उनके बारे में मेरे पास अभी एक सेशन और है 21 को, क्योंकि 20th वाला सेशन तो अभी आज मैं ले रही हूँ, 20th को प्रोफेसर जसीम आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे. सो 21 तारीख वाला जो सेशन है, that is on tools and FOSS. But today's session is going to fully based on the resources, how to identify the resources. वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम OER कहते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोडक्ट हो जाएंगे, जो इसमें सब चीजें आ जाती हैं. ये जितनी भी कैटेगरी है रिसोर्सेज की, ये सब मैंने आपको बता दी. कोई भी तरह का रिसोर्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और जिसको यूज करने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं देने हो, कुछ भी किया जा सके, वो OER होता है. अब इसके बाद देखिए जो ओपननेस है, ओपननेस का मतलब कौन सी फ्रीडम्स हैं इन कंटेंट्स को यूज करने के लिए. तो इन कंटेंट को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो OER है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब आप दे सकते हैं किसी को. और अगर आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं एंड यू ऑल्सो विश टू अर्न सम मनी, there are a few categories of resources जिनको even sell भी किया जा सकता है. बहुत कन्वीनियंट होते हैं ये रिसोर्सेज, क्योंकि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिना वक्त बर्बाद किए, नहीं तो परमिशंस के चक्कर लगते हैं. कई बार ऐसा होता है, हमें कोई आर्टिकल पसंद आया न्यूज़पेपर में या कहीं पे, उसको हमें यूज करना है, कोट करना है, सो वी हैव टू सीक परमिशन एंड वी हैव टू राइट अ लेटर. फिर वो 10 दिन 15 दिन बाद शायद रिप्लाई करेंगे, या कभी कभी नहीं भी करते रिप्लाई. तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी जस्ट चक ऑफ द आइडिया ऑफ यूजिंग दैट मटेरियल. तो वो सारी परेशानियां इन मटेरियल के साथ नहीं होती, क्योंकि ये सारे के सारे बिल्कुल इजीली अवेलेबल होते हैं और कभी भी लिया जा सकता है. तो ये, और एक चीज और है, जो भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्स प्रोवाइडिंग साइट्स हैं, वो कभी भी अपने कंटेंट को बिना चेकिंग के, बिना स्क्रूटनी और बिना रिव्यू के पब्लिक नहीं करती. तो कभी कभी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे विकिपीडिया है,
Wikipedia is also one of the content providing sites which provides the content as OER. लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कई बार मैंने देखा है कि विकिपीडिया पे तो कोई भी लिख सकता है, तो वो जो कंटेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी कौन जांच रहा है, वो कैसे यूज कर लें। तो मैं आपको बता दूं, विकिपीडिया एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एडिटिंग वेबसाइट है। उस पे जो एडिटिंग करने की इजाजत होती है वो हर किसी को नहीं मिलती है। एडिटर्स उस पे अपने आप को एनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, उसके बाद जिनको जो एडिटर बन जाते हैं उस पे, वो ही उस पे लिख सकते हैं। अव्वल तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अगर आपने, मान लीजिए मैं एडिटर हूँ और मैंने वहां पे कुछ लिखा, तो मुझे आज के आज नहीं दिखने लगेगा। जब मैं, जो मेरा इंटरफेस होगा लिखने वाला, उसको बंद करके नॉर्मल इंटरफेस पे आऊंगी जो जनरल पब्लिक को दिख रहा होगा, तो मेरा किया हुआ करेक्शन या मेरा किया हुआ एडिशन मुझे फौरन नहीं दिखेगा। एटलीस्ट 15 दिन से 1 महीना लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपने डाला था कंटेंट उधर, वो पूरा का पूरा नहीं आया, आधा आया, या नहीं भी आ सकता है, क्या उसमें कुछ पार्शियल चेंजेस के साथ वो आया। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी साइट्स हैं, ये कंटेंट रिव्यू कराती हैं। विदाउट रिव्यू कोई कंटेंट को पब्लिक नहीं किया जाता। और रिव्यू करने के लिए मल्टीपल फोल्ड्स में रिव्यू होता है, ब्लाइंड रिव्यू होता है। क्योंकि मैं खुद इंडिया की जो पहली वेब प्लेस, या आप कह सकते हैं रिपोजिटरी, जिसका नाम नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है, मैंने जब CIET ज्वाइन किया था, तो दैट वाज द फर्स्ट वर्क विच वी गॉट, एंड इन 2013 और 2013 में ही हम लोगों ने NROER को लॉन्च किया था, जो इंडिया का पहला रिपोजिटरी है जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स प्रोवाइड करता है। अभी चूंकि गवर्नमेंट चेंज होती है तो प्रोजेक्ट भी चेंज हो जाते हैं, तो राइट नाउ द NROER इज मर्ज टू दीक्षा प्लेटफॉर्म। लेकिन उस टाइम पे जो NROER का प्लेटफॉर्म था, हम तो उस पे पूरे इंडिया से अपना मटेरियल देते थे। मेरे ख्याल से किसी का माइक ऑन हो गया है, माइक ऑफ कर लीजिए। सो पूरे इंडिया से लोग अपना कंटेंट उस पे देखते पब्लिश करने के लिए। जब तक वो उस कंटेंट को हम लोग 5-6 टाइम्स ब्लाइंड रिव्यू के लिए पूरे रिव्यू पैनल के सामने वो चेक नहीं हो जाता था, उस कंटेंट को हम लोग पब्लिक नहीं करते थे। एंड इन द सेम वे right now also all the institutions which are the content providers of OERs, they use the rigorous process to review. I think somebody's mic is on. Please switch off your mic. So ये जो प्रोसेस है, इसमें जो कंटेंट है वो एक्सेसिबल और एक्रीडेटेड होता है, मतलब उसको ऑथेंटिकेट किया गया, उसको चेक किया गया होता है। और यहाँ पे हर तरह के रिविजन्स वगैरह सब पॉसिबल होते हैं इस तरह के कंटेंट के साथ। डेफिनेशंस मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें जो बताई हैं, वही चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। जो ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, ये बनते कैसे हैं OERs, इसकी डेफिनेशन से ये चीज साबित होती है। बेसिकली किसी भी रिसोर्स को अगर हम एक ओपन लाइसेंस दे देते हैं, ओपन लाइसेंस जो कि मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ अभी, लाइसेंस दे देने से उसके ऊपर हम एक लाइसेंस का कुछ निशान लगा देते हैं, स्टैंप कर दिया। जैसे कैसे होता है, हॉलमार्क देखते ही आपको समझ में आ जाता है ये भाई इसको चेकिंग की गई होगी, इसके बारे में अभी शुबा करने की जरूरत नहीं, कोई भी डाउट की जरूरत नहीं। हॉलमार्क है, BIS है, ISI और क्या क्या जो डिफरेंट तरह के ट्रेडमार्क्स होते हैं, वो देख करके हमें पता लग जाता है ना कि यस दिस मटेरियल इज समहाउ स्टैंडर्ड, इसको फिर अभी हम आराम से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो कंटेंट है, रिसोर्सेज का जो कैटेगराइजेशन है, उसमें अगर आपको ये CC वर्ड जो है, ये CC के साथ और भी दूसरी चीजें हैं, वो भी पूरा मैं आपको बताऊंगी। ये लाइसेंस का जो बॉक्स होता है, लाइसेंस की लाइन, वो देखने को मिल जाए तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो कंटेंट है ये अभी आराम से मैं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि इस कंटेंट को जो OER साइट्स हैं उन्होंने प्रॉपरली ऑथेंटिकेट कर लिया होगा, उसके बाद ही उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया होगा। इन लाइसेंसेस के बारे में थोड़ा सा मुझे आपको ज्यादा जानकारी देनी है, उसके लिए आई विल टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स, एंड फॉर दैट पर्पस वी विल जस्ट गो टू द गूगल विंडो। और मैं यहाँ पे गूगल विंडो पे टाइप करूंगी क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स ये पहला जो आपकी सर्च रिजल्ट आएगा,
This will take you to the web place of or the home page of Creative Commons. होम पेज है ये, यहाँ पे आपको लाइसेंसेस एंड टूल्स के बारे में अभी जानकारी चाहिए, तो वी जस्ट हैव टू मूव टू लाइसेंसेस एंड टूल्स। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ऐसे आ गया, और इधर लाइसेंसेस एंड टूल्स की कैटेगरी में पहला जो पॉइंट है उसको आपको क्लिक करना है अगेन, अबाउट सीसी लाइसेंसेस। ये करने के बाद इधर लाइसेंसेस के बारे में पूरी डिटेल आ जाती है। अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाइसेंसेस क्या हैं और इनका क्या मतलब है, बेसिकली इसको पहचानना कैसे। देखिए, पहला जो लाइसेंस है, द फर्स्ट लाइसेंस इज कॉल्ड एज सीसी बाय। दिस इज एन एक्रोनिम. CC stands for Creative Commons and BY is an acronym given to attribution. By means किसकी तरफ से, so attribution. BY अगर कहीं भी आपको दिखता है, ये by दिखता है कहीं पे भी, तो you can just see, you can understand that this material is having a license which makes it essential to acknowledge the source. Acknowledgement देना है, मतलब अगर बाई लगा हुआ है तो मतलब जिसने भी बनाया है उसको, फर्स्ट टाइम जिसने भी बनाया है और फिर उसे OER डिक्लेयर कर दिया है, जब सेकेंड टाइम कोई भी व्यक्ति उसे यूज करेगा तो उसे जो फर्स्ट व्यक्ति है जिसने बनाया था उसे एक्नॉलेज जरूर करेगा, एट्रीब्यूशन जरूर देगा। सोर्स एक्नॉलेज करना जरूरी होता है जहां भी बाय लगा हुआ है, और क्रिएटिव कॉमन्स तो एक्रोनिम है ही, संस्था का है। तो पहला जो लाइसेंस है उसका नाम है CC बाय। ये जो लाइसेंस है ये बड़ा ओपन लाइसेंस है, क्योंकि ये सिर्फ कहता है कि अगर ऐसा कोई रिसोर्स है, यू कैन यूज इट, यू कैन रीमिक्स, डिस्ट्रीब्यूट, अडेप्ट, बिल्ड अपॉन, सेल, you can do anything you want to. The only and only requirement is that you need to give attribution. सोर्स को एक्नॉलेज करना है बस, और कुछ भी नहीं मांगता ऐसा रिसोर्स। ये कहाँ पे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा? बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो CC बाय को यूज कर रही हैं आजकल, और सबसे पॉपुलर यूट्यूब पे there are just two type of licenses. The first license which YouTube uses is the standard YouTube license, which is fully copyrighted. Never ever try to use the material which is under standard YouTube license. और उसकी पहचान क्या होती है? लिखा नहीं होता कुछ भी, लाइसेंस का नाम वहां नहीं होता कहीं भी, ब्लैंक स्पेस, कुछ भी नहीं है, अगर लाइसेंस वर्ड भी नहीं है। पहले एक जमाना ऐसा था जब लिख के आता था स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ये लाइन लिखी होती थी रिसोर्सेज के नीचे, लेकिन अभी यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। उन्होंने क्या किया है कि क्योंकि सिर्फ दो ही कैटेगरी है, तो उन्होंने ये कर दिया कि एक कैटेगरी जिसपे लिखा हुआ होगा वो ये वाली होगी, CC बाय वाली, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन रीयूज अलाउड, ये लिखा होगा। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप मान लीजिए कि वो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है, आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं, वो वहां उन्होंने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस लिखना छोड़ दिया है। तो या तो लिखा होगा या तो नहीं लिखा होगा, लिखा होगा तो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड लिखा होगा, और नहीं तो नहीं लिखा होगा। जो नहीं लिखा है दैट इज स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, उस मटीरियल को कभी मत यूज कीजिएगा फॉर रिपर्पजिंग। देख सकते हैं, लोग देखते ही हैं, दिन भर में जाने कितनी बार यूट्यूब ओपन होता है। That's why it is the most opened website, most used website of the world, वेब प्लेस आप कह सकते हैं। बट कभी जब इसमें से लेकर के यूज करना है, देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ओनली द मटेरियल विच इज अंडर CC। अब मैं आपको एक बार इसको दिखा देती हूँ, यूट्यूब पे चले जाती हूँ। यूट्यूब जो है इस पे मैं गई, और मैं यहाँ पे जो कोई भी वीडियो अगर मैं ओपन करती हूँ, तो यहाँ तो बहुत सारे मीडिया, जैसे ये है, मैंने इससे अगर ओपन किया, इस मटेरियल में आपको ढूंढना कहाँ पे है लाइसेंस की लाइन, इधर, यहाँ पे लाइसेंस की लाइन, जहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वहीं पे लाइसेंस की लाइन लिखी होती है, यहाँ नहीं लिखी हुई है। क्या मतलब? ये एकदम स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है, इसको यूज नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कब जब लिखा रहेगा तो कैसा लगेगा, कैसा लिख के मिलेगा। मैं इसके लिए
So I will just take you to for a second to my channel. ये मैं क्योंकि मैं जो भी डालती हूँ वो OER होता है और बहुत सारे लोग OER को यूज करते हैं और फिर OER में कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन YouTube. So you can see that ये एक वीडियो जो मेरे चैनल पे खुला है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वाला जो वीडियो है, या इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं और ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, उनमें आफ्टर द वीडियो डिस्क्रिप्शन यू कैन फाइंड अ लाइन कॉल्ड लाइसेंस, और उसमें ये लिखा होता है ब्लू कलर में, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड, विच इज इक्विवेलेंट टू CC BY. और कैसे होता है ये, किया कैसे जाता है? जब आप कभी भी यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, साइन इन करना होता है, उसके बाद अपने आप वहां पे जब आपने यूट्यूब में साइन इन कर लिया तो वहां पे आने लगता है कि आप लाइव जाना चाहते हैं या अपलोडिंग करना चाहते हैं. तो जब अपलोडिंग के सेक्शन पे जाने के बाद वहां पे आपको एक अपना जो भी वीडियो है उसको उसमें लगा देना होगा अपलोड होने के लिए, और प्लस आपको एक शीट भरनी होती है जिसमें डिटेल्स लिखनी होती है. ये वीडियो का नाम क्या है, कौन ऑथर है, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, ये वो बहुत सारी चीजें आपको लिखनी होती है. लास्ट में ना एक सेक्शन होता है जो मैंडेटरी नहीं होता, यूट्यूब ने उसको मैंडेटरी नहीं किया है, वो होता है प्राइवेसी डिटेल्स. उसे आप अगर आपने प्राइवेसी डिटेल्स को क्लिक किया तब तो वो ओपन होगा, और नहीं तो वो नहीं ओपन होगा. जो प्राइवेसी डिटेल्स वाला सेक्शन है, आप जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो वो आपको बोलता है वेदर यू वांट टू डिस्प्ले योर वीडियो, यू वांट टू शेयर योर वीडियो अंडर दिस लाइसेंस, ये लाइसेंस की लाइन वहां लिखी होती है, और नॉट. तो आपने अगर वहां पे क्लिक कर दिया क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंसेस वाले पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियो अभी क्रिएटिव कॉमन्स के वीडियो में OER में कन्वर्ट हो जाता है. तो यही दो कैटेगरीज है जो यूट्यूब पे वीडियोस की होती है. या तो कोई लाइसेंस नहीं होगा जिसका मतलब है वो स्टैंडर्ड यूट्यूब हो गया, और या फिर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस होगा. इसके बाद नेक्स्ट जो वापस इस पे आ जाते हैं, ये वापस मैं इस पे आ गई, जो लाइसेंसेस वाला पेज था क्रिएटिव कॉमन्स का, जो अगला लाइसेंस है दैट लाइसेंस इज नेम्ड एज CC BY SA, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक. SA का मतलब है शेयर अलाइक. क्या मतलब हुआ इसका? कि आपने मान लीजिए कहीं पे गए, किसी साइट पर से आपने किसी कंटेंट को लिया, उस कंटेंट ने CC BY SA लाइसेंस यूज कर रखा था, आपने उस कंटेंट को लेने के लिए वहां से ले लिया. आप उस कंटेंट के साथ कुछ भी करिए, रीमेक्स, अडैप्ट, बिल्ड अपॉन, मैनिपुलेट, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन इवन सेल, सब कुछ आप कर सकते हैं. आप एट्रीब्यूशन जरूर देंगे क्योंकि ये बाई है, यहाँ पे एट्रीब्यूशन यानी सोर्स को एक्नॉलेज जरूर करेंगे, पहली चीज. और दूसरी चीज, अगर आपने कोई नया कंटेंट बनाया है, उस एक वीडियो या कोई भी कंटेंट को यूज करके आपने कोई नया कंटेंट बनाया, और आप इस नए वाले कंटेंट को आप उस वापस वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे डालना चाहते हैं, तो आप यही वाला लाइसेंस अपने वाले कंटेंट को देंगे. जैसे अगर मान लीजिए मैंने CC BY SA कंटेंट को लिया और उससे कोई वीडियो बनाया यूज करके, और फिर मैं यूट्यूब पे जाऊं और यूट्यूब पे जा करके उसको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में रिलीज कर दूं, तो मैं गलत कर रही हूँ. Why? Because I have used something which is OER, which is under CC BY SA. इससे बना हुआ कंटेंट, जब इससे हम कंटेंट को तैयार करते हैं तो हम उसको सेम लाइसेंस के तहत रिलीज करेंगे, ना कि किसी XYZ लाइसेंस से. अब ये जो लाइसेंस है ये विकिपीडिया इसी को यूज करती है. विकिपीडिया का जो भी कंटेंट है, विकी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, विकीमीडिया, विकी कॉमन्स, OER अफ्रीका करके एक है, विकीमीडिया तो है ही, विकिपीडिया भी है, जिसमें भी विकी लगा हो, WIKI लगा हो, ये कंपनी है जिसके ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. विकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सबके सब CC BY SA लाइसेंस को यूज करते हैं. और मैंने यहाँ भी ये भी देखा है कि विकी के कुछ प्रोडक्ट्स अब CC BY लाइसेंस को भी यूज करने लगे, लेकिन मैक्सिमम जो उनका काम है वो CC BY SA लाइसेंस के तहत ही रिलीज होता है. तो अगर आप विकिपीडिया से कुछ भी लेते हैं, या जैसे एक इंडिया का विकासपीडिया भी है, वो भी CC BY SA को ही यूज करता है. भारत सरकार की जितनी भी साइट्स हैं पहले सबकी सब CC BY SA को ही यूज करती थी.
अभी जैसे कि स्वयं प्रभा है या स्वयं के वीडियोस हैं, वो अब उन्होंने थोड़ा सा अपनी पॉलिसी को चेंज किया है और चेंज करके उन्होंने एक दूसरा लाइसेंस है उसको अडेप्ट कर लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे भारत के अलावा, इंडिया के अलावा जो और भी बहुत सारे आपके दूसरे कंट्रीज हैं, उनका जो कंटेंट है वो इधर ही CC/SA के तहत ही रिलीज होता है। इस तरह के कंटेंट को लेने के बाद बस आपको एट्रीब्यूशन देना होता है, और जब कुछ नया बना है तो उसको आपको शेयर अलाइक इसी के साथ ही रिलीज करना होता है। अगला जो लाइसेंस है दैट इज नेम्ड एज CC/NC, क्रिएटिव कॉमन्स BY से एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियल। NC स्टैंड्स फॉर नॉन कमर्शियल, मतलब आप ऐसे कंटेंट को यूज कीजिए, रीयूज कीजिए, रिडिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसको यूज करके कुछ नया भी बना लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। सो आप बेच नहीं सकते। आपने अगर ऐसा कोई कंटेंट लिया और उसके मदद से एक नया वीडियो बनाया और फिर उस वीडियो को आप कमर्शियल पर्पस से यूज करने लग गए, तो वो गलत होगा। जैसे अगर आपने कमर्शियल पर्पस से यूट्यूब पे डाल दिया कि उससे आप पैसे गेन करने लग जाएं, तो वो गलत होगा। तो CC/NC यानी नॉन कमर्शियल जो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कंटेंट यूज करने की इजाजत देता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए आप जितना भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो दिस इज CC/NC। जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ जमीन? सो दिस इज CC/NC, जो कि बहुत सारी जगहों पे इसको भी यूज किया जाता है। इसके बाद वाला जो है वो उसको बेसिकली भारत सरकार की बहुत सारी साइट्स ने, जैसे स्वयं प्रभा ने पूरा का पूरा इसको ही अडेप्ट कर लिया है। CC/NC/SA ये नेक्स्ट लाइसेंस है। CC/NC/SA में वही बातें हैं, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियल, शेयर अलाइक। मतलब अगेन आप इसको यूज कीजिए, जितना मर्जी यूज कीजिए। आप जब भी नया कुछ बनाएंगे तो इसी लाइसेंस के तहत रिलीज करेंगे, और जो यूज होगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। मैं आपको बताऊं, जो पहले जो हमारा स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा was using CC/SA लाइसेंस, फिर बाद में उन्होंने चेंज किया अपनी पॉलिसी और CC/NC/SA को यूज करना शुरू किया, क्योंकि क्या देखा जा रहा था कि स्वयं प्रभा पे NPTEL के भी वीडियोस हैं, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, 7 ओल्ड IITs का कंसोर्शियम, उनके उनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी अब स्वयं प्रभा पे हैं और स्वयं प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ये देखा जाता था कि इंडिया के बाहर के कंट्रीज में बहुत सारी जगहों पे उस कंटेंट को लोग यूज कर रहे थे और उसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, और उसका क्रेडिट भी नहीं सही से ट्रांसफर कर रहे थे। तो जब इस चीज को नोटिस किया गवर्नमेंट ने, तो फिर पॉलिसी को चेंज किया और CC/NC/SA को चुन लिया। और अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाती हूँ, स्वयं प्रभा के कुछ वीडियोस में एक दो बस दिखा देती हूँ। देखने यहाँ पे पता चलेगा। ये एक वीडियो है स्वयं प्रभा का, यूट्यूब पे, ये तो मेरा ही बनाया हुआ वीडियो है, ये नेट पे अवेलेबल है। ये पूरे सीरीज है, IIT मद्रास के लिए डेवलप किया है। और इसमें मैं अगर आपको लास्ट में दिखाऊं, इस वीडियो में काफी बड़ा है, 31 मिनट्स का है, और ऐसे करीब 150 के अराउंड वीडियोस हैं। अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग पेपर्स हैं, B.Ed से और MA एजुकेशन, M.Ed के, जिनके ऊपर ये सारा कंटेंट बना है। और भी फिल वक्त एक जो 5वां प्रोजेक्ट है, जो कि IIT दिल्ली और मद्रास के कोलैबोरेशन में बना है, उसके सारे वीडियोस अभी पाइपलाइन में, दे विल आल्सो कम, देन द नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज अराउंड 200 वीडियोस हो जाएंगे। ये सारे स्वयं प्रभा पे तो अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी इनका जो चैनल है, ये स्वयं प्रभा IIT मद्रास चैनल, इस पे भी अवेलेबल है। ये मैंने आपको ओपन क्यों किया दिखाने के लिए। लास्ट पेज जो है इस वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो समरी पेज है, समरी पेज पर लास्ट में एक लाइन लिखी है, डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियल, शेयर अलाइक, CC/NC/SA, और ये जो बॉक्स है CC/NC/SA का, वो यहाँ लगा दिया गया। इसके लगाने से क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, पूरा वीडियो है, इस एक लाइन और इस बॉक्स के मौजूदगी से
This has transformed into an open educational resource and which is offering the content under the license of CC by NCSA. ये एक तरीका है जिसके जरिए हम जो तमाम वीडियोस होते हैं या तमाम तरह के कंटेंट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं अभी आपको पूरी प्रोसेस को समझाऊंगी और कैसे करा जाता है। तो ये एक एग्जांपल था टू शो दैट हाउ द कंटेंट व्हिच इज CC by NCSA लुक्स लाइक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट लाइसेंस है उसका नाम है CC by ND। CC और बाई वही वाले, ND नया आ गया। ND इट स्टैंड्स फॉर नॉन डेरिवेटिव। नॉन डेरिवेटिव मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, अडेप्टेशन नहीं कर सकते। जो कंटेंट है वो उसको फर्स्ट यूजर ने जैसे प्रिपेयर किया है एग्जैक्टली वैसे ही आपको यूज करना है। उसमें कोई तरमीम, कोई चेंज नहीं की जा सकती। उस कंटेंट को एज इज यूज करना होता है, यानी अडेप्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन कॉपी, यू कैन यूज इट इवन फॉर कमर्शियल पर्पस, बट यू कैन नॉट मेक एनी अडेप्टेशन। इसके बाद का जो लाइसेंस है, जस्ट नेक्स्ट इसके बाद वाला, दिस इज कॉल्ड एज CC by NCND। ये लाइसेंस को हम लोग बहुत क्लोज्ड लाइसेंस मानते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसमें देख के पता चल रहा है कि ऐसा जो कंटेंट होगा उस क्रिएटिव कॉमन्स हो गया, एट्रीब्यूशन देना होगा, वो कंटेंट जो है वो कमर्शियल पर्पस से यूज नहीं कर सकते क्योंकि NC है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से यूज होगा। और नॉन डेरिवेटिव भी है, मतलब इस कंटेंट को हम चेंजेस इसके अंदर अलाउड नहीं है, अडेप्टेशंस अलाउड नहीं है। नॉन डेरिवेटिव जैसे है वैसे ही हम यूज करेंगे। इसका मैं आपको बताऊं कहाँ पे यूज होता है। NCERT की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो टेक्स्ट बुक्स इस लाइसेंस को यूज करती हैं, इसीलिए बुक्स को सिर्फ NCERT ही बनाती है और वो ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। कोई इंसान चाहे कि उसको छाप करके और उसकी जिल्द बना के और बांटना, फ्री में भी बांटना शुरू कर दे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द कमर्शियल यूजेज इज नॉट अलाउड। फ्री में का मतलब ये हुआ कि आपने एक तरह से NCERT का ब्रेड एंड बटर में तो इन्फ्रिंजमेंट कर दिया ना। सो आप डिस्ट्रीब्यूट जो है आप खुद से डेवलप करके आप नहीं कर सकते, जो भी करेगा वो खुद NCERT करेगा। सो द कंटेंट which is released under CC by NCND, it is not changeable, adaptations are not allowed, and commercial usage is not allowed. The commercial usage can be done only by the authority जिसने वो उसको बनाया है। तो CC by NCND जो लाइसेंस है, दिस इज द लास्ट लाइसेंस। इसके बाद देखिए एक और है, मैंने कहा लास्ट है ये CC by NCND को क्योंकि ये जो 6 लाइसेंसेस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के जो क्रिएटिव कॉमन्स देता है वो 6 पूरे हो गए। अब ये जो बचा है लास्ट में 7वां, दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज we can say either a copy left or CC 0 or a public domain dedication tool we कहते हैं, any type of name you can give it to it. So this content is public domain content जो कि किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है। आप नहीं है, किसी को माइक ऑन हो गया, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। सो जो ये वाला होता है CC 0 होता है, इसको आप कैसे भी यूज कर लीजिए। इसे यूज करने के लिए आपको ना तो परमिशन लेनी, ना तो एट्रीब्यूशन देना। देखिए इसमें बाय नहीं है, यानी कि एट्रीब्यूशन भी नहीं मांग रहा है, कुछ भी जरूरत नहीं करने की। आप इसको रिमिक्स कीजिए, अडेप्ट कीजिए, बिल्ड अपॉन कीजिए, सेल कीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। मगर एक चीज याद रखिएगा, ये जो कंटेंट है आमतौर से ये सरकारी दस्तावेज होते हैं, जैसे जो गैजेट होता है, गैजेट ऑफ इंडिया है, या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, या देर आर मेनी साइट्स जैसे पिंटरेस्ट है, पिक्साबे है। ये लोग अभी क्या है, इनका जो कंटेंट है इसको ये लोग पब्लिक डोमेन डेडिकेशन टूल के अंदर रिलीज करने लगे, क्योंकि इसको उनके कंटेंट को देख के ही पता चल जाता है कि ये किसका है। तो अगर आप नहीं भी देते एट्रीब्यूशन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप नहीं भी लिखते किसने लिखा है तो भी सबको पता है। सो द वेल नोन थिंग्स, द वेल नोन मटीरियल दैट कम्स अंडर दिस डोमेन ऑफ पब्लिक डोमेन। सो ऐसा मटेरियल को आपको एट्रीब्यूशन देना रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ टीचर, मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ
कि कंटेंट जब भी आप लें, चाहे भले ही वो पब्लिक डोमेन का ही क्यों ना हो, एट्रीब्यूशन देने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक हुई या कुछ भी तरह का इशू है, अब देखिए जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है उसमें तो मिस्टेक का होने के चांसेस नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे पिक्साबे है, पिंटरेस्ट है, और भी बहुत सारे जो साइट्स हैं, उस पे जो कंटेंट है, अब है तो वो पब्लिक डोमेन होने के बावजूद भी आपने उसको अगर डेडिकेशन उसको उसको आपने सोर्स नहीं किया, अपने आप उससे ये जाहिर होगा कि ये कंटेंट आपने खुद क्रिएट किया है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, लेकिन बाय द वे उसमें कोई मिस्टेक होगी, देन यू आर गोइंग टू ओन द मिस्टेक आल्सो, व्हिच इज समथिंग, क्यों दूसरे की गलती को अपना बनाना है। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई डू, मैं कभी भी कोई भी मटेरियल लेती हूँ, चाहे वो पब्लिक डोमेन ही क्यों ना हो, उसको मैं दे देती हूँ एट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। एट्रीब्यूशन नहीं भी मांग रहे तब भी दे देते हैं, बता देते हैं ये जगह इस जगह से लिया है, क्यों कहें कि ये हमने बनाया जब हमने बनाया नहीं है। सो इट्स अनएथिकल ऑल्सो ना, कि हम किसी और का बनाया हुआ कंटेंट को कह दें कि हमने किया है। अब अगर मैं इसको दिखाऊं ये करते, ये इसका एग्जाम्पल देखती हूँ, इस वाले वीडियो में होगा कुछ तो, यस, जैसे कि ये प्लेस है, ये देखिए, ये जो है, अब ये पिक्सियर अगेन पब्लिक डोमेन में ही देता है कंटेंट। पिक्सियर पे से ये लिया है मैंने, ये जो वीडियो था, इस इस वीडियो में कंटेंट, ये जो विजुअल एनरिचमेंट के लिए ये फोटो मैंने ली थी। अब इस फोटो के नीचे आप देखिए एक सोर्स लिखा हुआ है, सोर्स https picshere.com, ऐसे करके ये लिख दिया है। ये बेसिकली क्या साबित कर रहा है कि जो ये कंटेंट है जो इस वीडियो में यूज किया गया है, इस कंटेंट का ये सोर्स है। this particular photograph is taken from this particular place. ओके, सो ऐसे करके यहाँ पे इसका ये एक्नॉलेजमेंट इस वीडियो में दे दिया गया है। अब इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट इसमें, और देखिए ये भी दिखा देते हैं, इसमें एक और फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ में ये फोटोग्राफ विकीमीडिया का है, इसको भी CC BY SA जो लाइसेंस होता है उसके तहत रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो भी यहाँ फोटो के जस्ट नीचे सोर्स को दे दिया गया। अब देखिए, अब हम लोग जो काम करने वाले हैं, ये तो हो गए सारे लाइसेंसेस का डिटेल। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट जो काम करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू आइडेंटिफाई द कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, जहां से हम लेते हैं नॉर्मली। तो इसके लिए वी विल गो टू क्रिएट समथिंग। सो की बहुत सारी फाइल्स हैं, कुछ फाइल्स को डिलीट कर देते हैं इधर जगह। हाँ, मैं क्या करूंगी, इधर एक नई फाइल बनाने जा रही हूँ। मैंने एक नई फाइल बनाई, वर्ड फाइल, नॉर्मल वर्ड फाइल, इसका नाम दे देते हैं AMU वंजागी। और ये फाइल जो है, इसको मैंने यहाँ ऐसे ओपन कर लिया। ये मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया। अब देखिए, इस पे कुछ हमें क्रिएशन करना है। लेट अस क्रिएट some content which is which is going to use a lot of material which is already OER। तो एक कोई टॉपिक ले लेते हैं जिसपे हम कंटेंट को डेवलप करेंगे। तो मैं ले लेती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक लिया मैंने, और मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ और थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम कुछ लिखने वाले हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ लिख देती हूँ अपने से, और मैं स्क्रिबल करूंगी जस्ट, तो आप लोग उसको मान लीजिएगा कि वो मैंने लिखा है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी एक्चुअली तो बहुत टाइम लगेगा। तो आई एम जस्ट स्क्रिबलिंग समथिंग। ये यू जस्ट इमेजिन दैट दिस इज, अज्यूम कर लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने खुद से कुछ लिखा है। अब ये 5 लाइन 6 लाइन लिखने के बाद आई फील दैट एक फोटो लगा दूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जाहिर बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोटो के लिए
मुझे या तो लैब में जाना होगा और वहां पे जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोटोग्राफ लेना पड़ेगा, आइदर विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस, माइक्रोस्कोप में जाकर के, क्योंकि ये तो दिखती तो है नहीं आने के डाई से, तो या तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा या फिर कैमरा लूसिडा लगा करके, और जो हाई लेवल के माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनको लेकर के मुझे अपने आप फोटो खींचनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है ये बहुत मुश्किल काम है, जिसके पास लैब की फैसिलिटी नहीं है उसके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है। अब नॉर्मली टीचर्स के पास, सबके पास तो अपनी लैब होती नहीं है या लैब का एक्सेस नहीं होता। हम लोग एजुकेशन के टीचर्स हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, साइंस पेडागोजी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। अब हमारे पास अपनी लैब नहीं है। मैं अगर बायो साइंसेस डिपार्टमेंट की टीचर होती तो मेरे पास अपनी लैब होती। तो अभी मुझे अगर कोई आर्टिकल लिखना है बायोलॉजी के किसी टॉपिक पे, आई आइदर हैव टू गो एंड प्लीड, भाई मुझे थोड़ा यूज करने दो ये वो, एंड देन आई विल गेट द फोटोज एंड ऑल। और द सबसे आसान थिंग, सबसे आसान तरीका which every teacher normally uses is to go to the Google and search for an image। देखते हैं, हम भी वही करते हैं नॉर्मली जो सब लोग करते हैं। तो गूगल पे जाके गूगल का एक नया पेज खोला और यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ सर्च वर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये टाइप कर दिया मैंने। कीवर्ड टाइप करते ही उसका जो उसके बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स आने लगते हैं। आई राइट नाउ रिक्वायर ओनली इमेजेस, सो आई कैन गो टू द इमेजेस सेक्शन। मैं यहाँ आ गई। इमेजेस सेक्शन पे आने के बाद जैसे ही आप इमेजेस करते हैं तो अब आपके पास सिर्फ इमेजेस आ जाती है, गूगल इमेजेस। और देखिए बहुत सारी इतनी इमेजेस हैं, कोई इंतहा नहीं, सब की सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही की इमेजेस हैं। बड़ी अच्छी लग रही है ये वाली, लेकिन ये वाली इमेज लेने के बाद हो सकता है मुझे पछताना पड़े, क्योंकि क्या पता ये कॉपीराइटेड हो। तो ये पता लगा लेना बेहतर है कि ये इमेज है कैसी, और फिर ही लेना है। फ्री वाली को ही लेना है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स को ही लेना है। सबको लेने में फंस जाएंगे, हमारी सारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। वो एक छोटा सा कंटेंट जो कॉपी कर लिया इनका, उसके लिए क्या करेंगे, यू हैव टू गो टू दिस सेक्शन, टूल्स पे जाइए। जैसे ही टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहीं पे होता है टूल्स लिखा हुआ, उस पे क्लिक करते ही नीचे एक लाइन और अपीयर होगी जो पहले नहीं दिख रही थी। अब इस लाइन में ये एक सेक्शन है यूसेज राइट्स का, इसमें एक ड्रॉप डाउन बना होता है, उस पे क्लिक कीजिए। जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक टिक मार्क दिखता है आपको, और ऑल पे टिक मार्क बना हुआ है। आप यानी कि अभी सब तरह की इमेजेस हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्रिएटिव कॉमन्स वाला, सो द सेकेंड वन, इस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, क्या होगा कि वो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस इधर लिख के आएगा, लिखा हुआ दिखना चाहिए नीले रंग से। और अब पहले जितनी सारी थी मैक्सिमम चली गई, बस कुछ सी बची हैं। ये वाली जो इमेज थी पहले भी थी, लेकिन खान एकेडमी लिखा हुआ था नीचे, जबकि ये इमेज ओरिजिनली विकिमीडिया की है। तो खान एकेडमी ने भी लिया होगा, उससे कुछ रिक्रिएट किया होगा और फिर उसको उधर डाला होगा। तो वहां खान एकेडमी के पेज पर वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमें नहीं चाहिए खान एकेडमी का। हमें क्या चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इन्फ्रिंज किया हो, वायलेशन किया हो कॉपीराइट का, लेकिन हम क्यों ऐसा करें। तो हम क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का फिल्टर लगा लेंगे और उसके बाद फिर हमें जो इमेज चाहिए वो इमेज यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि अभी फिल्टर लग चुका है। अभी भी बहुत सारा है, बहुत सारे चले भी गए, लेकिन इतने हैं कि आपका आराम से काम चल जाएगा। तो मैं ले लेती हूँ, ये वाली ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं। दिस वन, जिसको लेना है उसको क्लिक कर दीजिए। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो साइड में वो इमेज खुल के आ जाएगी, उसका साइड में वो इमेज का फोटो आने लगेगा। लेकिन देखिए अभी यहीं से इसे कॉपी नहीं करिए, इसको यहीं से कॉपी, क्यों ऐसा है, कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें सोर्स एक्नॉलेज करना है ना। ये लिंक आप देखिए, ये लिंक कितना लंबा सा है। क्यों ये इतना लंबा है, क्योंकि इस पेज पे जितना भी कुछ है उन सब की कोडिंग उस लिंक में है, सारी इंफॉर्मेशन उस लिंक में दर्ज है। और हमें तो सिर्फ ये लेना है, हमें तो ये सब नहीं लेना ना, हमें तो सिर्फ ये लेना है। यानी कि हमें उस पेज को खोलना है जो पेज सिर्फ इस वाले फोटो को शो करे। एक चीज और मैं दिखा दूं, यहाँ पे अगर आप लाइसेंस डिटेल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको वो जो लाइसेंस जिसके तहत वो
वो कंटेंट रिलीज्ड है उसको भी दिखा देगा। तो CC/SA 4.0 यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली। विकीमीडिया का है तो जाहिर है यही वाला लाइसेंस होता है। ओके, तो मैं इधर वापस आ गई। अब मैं इस पे एक बार और क्लिक करूंगी। जब मैं इस पे एक बार और क्लिक करूंगी तो ये अब उस पेज पे आ जाएगा जिस पेज पे ये अवेलेबल है, ये कंटेंट अवेलेबल है। मैं यहीं से भी इसे कॉपी कर सकती हूँ या एक बार और क्लिक कर दीजिए। अब जब आप एक बार और क्लिक करते हैं ना तो इस पेज पे सिर्फ और सिर्फ ये फोटो होती है जो आपको लेनी है एंड नथिंग। सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन टेक दिस इमेज। कॉपी कर लीजिए, मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया है और मैं अपने उस पेज पे आ जाती हूँ जहाँ पे मैं अपना एसे लिख रही थी। उधर से इस इमेज को लेके इधर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए क्या किया अभी हम लोगों ने, हमने एक OER को आइडेंटिफाई किया है और उसे कॉपी करके पेस्ट किया है। नेक्स्ट वर्क विच इज कंपल्सरी, क्योंकि CC/SA बाई है उसमें, यानी एट्रीब्यूशन देना जरूरी है। तो अब हमें इसको एट्रीब्यूशन देना है, यानी सोर्स को एक्नॉलेज करना है। और आप याद रखिए इस इमेज के अंदर कोई भी तरह का चेंज अलाउड है। अगर आप इस इमेज का आधा हिस्सा यूज करना चाहते हैं, कोई पोर्शन को सिर्फ यूज करना कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अलाउड बिकॉज इट्स अ CC/SA इमेज। बट हमें एक्नॉलेज करना है सोर्स को। तो क्या करेंगे, इस इमेज के नीचे लिखेंगे सोर्स, SOURC, सोर्स। यहाँ पे लिख दिया हमने कोलन। एक्सक्यूज मी, सुनिए, उधर बाथरूम भी हो गया ना? अच्छा, नहीं वो करने लगेगा, ऑन कर दीजिए, दोनों देख लीजिए। ये सोर्स को ये वर्ड लिखा SOURC सोर्स एंड देन ये कोलन लगाया। और इसके बाद फिर मैं वापस उस पेज पे आऊंगी, ये पेज जहां से मैंने ये इमेज को लिया था। अब यहाँ पे देखिए इमेज के जस्ट ऊपर, जस्ट अबव द इमेज, यहाँ ये जो लिंक है, आपको इस लिंक को कॉपी करना है। पूरा लिंक को कॉपी करिए। Why we should copy the link? Because what I'm going to do, I'm going to copy this and then coming back to this page, and I will be pasting this link just below the image for the source. Why this way? Why to acknowledge the source in this way? There are various types of acknowledgement which people normally use. नाम भी वो ढूंढ ढांड के कि किसने डाला है वो लिखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई दूसरा तरीका मत यूज कीजिए सोर्स एक्नॉलेज करने का। Why? Because if the question is that right now in today's date some material is OER, और मान लीजिए आज से एक हफ्ते बाद जो उसका फर्स्ट यूजर है उसको लगा कि नहीं अभी बहुत हो गया फ्री, अब हम उससे कमर्शियल यूज में लेके आते हैं, अब हम उससे पैसे कमाएंगे, और उसने कंटेंट को अपने OER के बजाय कॉपीराइटेड बना दिया, फ्रीनेस हटा दी उसकी। तो एक सवाल उठता है ना कि फिर मेरा क्या होगा, मैं तो एक हफ्ते पहले उनका कंटेंट यूज करके अपना नया कुछ बना चुकी हूँ, उसको भेज भी चुकी हूँ। अगर मैंने सोर्स एक्नॉलेज किया होगा इस तरह से जैसे अभी किया है, लिंक को कॉपी करके पेस्ट किया होगा, तो मुझे कोई समस्या नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली ये भी सुन लीजिए। जो ये लिंक होता है, ये कोडेड होता है। इस कोड में को आपके हमारे आपके लिए समझना मुश्किल है, जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनको पता है। ये कोडिंग की जाती है, उससे ये लिंक जनरेट होता है। एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन, एवरी सिंगल डेमोग्राफिक्स, किस डेट में, किस समय पे, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड पे ये वीडियो अपलोड किया गया था, किसने किया था, किस IP एड्रेस से, एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन इज कोडेड हियर इन दिस लिंक। So if you are acknowledging the link, the source through the link, then it gives the information कि ये तब लिया गया था जब ये OER था। अब आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ये क्या हो जाता है इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपने जब लिया था तब ये बिल्कुल ठीक ठाक था, ये OER था। So that's why it's always the best way of acknowledging any source is to copy the link and paste it under that image के नीचे। ये ऐसे करके हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। अब देखिए क्या एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊं आपको, जब हम लोग ऐसे लिंक को लेते हैं और एक्नॉलेज करते हैं तो कई बार ये तो छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सा लिंक आ जाता है। अब मैं एक चीज और भी करती हूँ, जैसे अभी नॉर्मल जो फॉन्ट साइज यूज यहाँ कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे 22 है, तो इसको छोटा कर सकते हैं, इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा कम छोटे साइज का कर सकते हैं। आपने देखा भी था मैंने जो वहां पे इमेजेस के नीचे डाला था, आई नॉर्मली यूज 11 और 12। तो ऐसे करके आप फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हैं। फिर भी देखिए अभी भी अगर बड़ा लग रहा है तो उसके लिए मैं एक और चीज सिखाना चाहूंगी जो कि और भी चीजों में आपको हेल्प करेगी, वो है लिंक शॉर्टनिंग। उसके लिए यू हैव टू गो टू अनदर प्लेस विच इज नेम्ड एज फ्री URL shortener .rb.gy. This is a web place which it's a purely free service. It offers to create all the links which are very big into a shorter link, and also it creates QR codes for you, जो क्विक रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं जिनको स्कैन करके आप पूरी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने जो विजिटिंग कार्ड्स हैं, अपने सीवीज हैं, या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मल्टीपल तरीके से यूज करते हुए क्यूआर कोड को, कि उनका जो सीवी है वो पूरे सीवी को उन्होंने क्यूआर कोडेड कर दिया और उस क्यूआर कोड को फिर उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड पे लगा दिया। तो अभी किसी को उनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो जस्ट स्कैन कीजिए कोड को, उनका पूरा बड़ा सा सीवी आपके फोन पे या आपकी डिवाइस पे खुल जाएगा। तो दिस इज अ वंडरफुल प्लेस विच कैन बी यूज्ड फॉर URL शॉर्टनिंग एज वेल क्यूआर कोड क्रिएशन। करना क्या होता है, जब ये खुलता है तो यहाँ पे एक ब्लैंक ऐसे स्पेस होता है, उसमें लिखा होता है एंटर लिंक हियर। जो भी लिंक था ना उस लिंक को इधर पेस्ट कर दीजिए। मैंने जो कॉपी किया हुआ था लिंक उसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया और क्लिक करना है शॉर्टन URL। ये कर विद इन फ्यू सेकेंड्स, जस्ट ये पहला वाला जो है ये वही जो मेरा लिंक जिसको मैंने शॉर्टन किया था वही है। ये यहाँ पे इतना छोटा सा शॉर्टन होकर के आ गया। इस लिंक को यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और मैं आ जाती हूँ इस पेज पे जहाँ पे हम लोग बना रहे थे। ये रहा वो पेज और मैं इस बड़े वाले लिंक के नीचे इस छोटे वाले लिंक को कॉपी कर देती हूँ एंड यू कैन कंपेयर द साइज। तो इट टेक्स वेरी लेस स्पेस एंड इट डज द सेम वर्क। तो लंबे वाले लिंक के बजाय आप छोटा वाला लिंक भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे ये जो लिंक शॉर्टन किया गया था उसी के बगल में क्यूआर कोड भी बन जाता है अपने आप। पहले हम लोग जब क्यूआर कोड बनाना होता था तो उसके लिए क्यूआर कोड क्रिएटर यूज किया करते थे, क्यूआर कोड जनरेटर यूज किया करते थे जो एक अलग वेब प्लेस था। अब इन्होंने क्या किया है, अब दोनों सर्विसेज को मर्ज करके एक ही जगह पे यहाँ पे शॉर्टन URL भी हो जाता है और क्यूआर कोड भी बन जाता है। तो जो आपने यहाँ पे लिंक था उसका ये शॉर्टन URL है, उसके बगल में ये क्यूआर कोड भी बन गया है। तो ये जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपसे कि कितना बड़ा चाहिए आपको, किस तरह का क्यूआर कोड चाहिए। तो मैं ये 64 पिक्सल का ले लेती हूँ छोटा सा। उस पर क्लिक करते ही वो अलग पेज पे खुल गया, ये आ गया आपका क्यूआर कोड। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड के जरिए भी एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। इस क्यूआर कोड को इधर पेस्ट कर लीजिए। हो गया पेस्ट, ये कि नहीं अभी हो रहा है। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स द क्यूआर कोड विल बी पेस्टेड। ये हो गया और आप चाहें तो इसका साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं। कोई भी अगर उसे स्कैन करेगा तो वो इसी वाले पेज पे पहुंचेगा जिस पेज पे ये इमेज है। या अगर आप इस वाले लिंक को ओपन करना चाहें कंट्रोल+ क्लिक करके, कंट्रोल+ क्लिक को यहाँ पे जाए और इसे कंट्रोल+ क्लिक, तो वही वाला पेज खुल के आ जाएगा जिस पेज पे वो इमेज थी अभी खुल रहा है। ये वही पेज खुल गया। तो बिल्कुल सेम काम करता है वो छोटा वाला लिंक जैसे कि बड़ा वाला लिंक करता है। और ये क्यूआर कोड भी, इसको कहीं भी अगर आप स्कैनर से स्कैन करेंगे तो वही सेम पेज आ जाएगा। सो इस तरह से ये जो URL शॉर्टनिंग या क्यूआर कोड के जरिए भी आप एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। आपको शॉर्टन नहीं करना है, लंबा वाला लिंक ही रखना है, लंबा वाला भी कर सकते हैं। ये जो क्यूआर कोड और शॉर्टनर है, ये जो लिंक शॉर्टनर है, इसके जरिए आप जो भी बड़े बड़े लिंक्स हैं, कोई भी बड़े बड़े लिंक्स, उनको आप शॉर्टन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे अभी हम लोगों का तो CV वेबसाइट पे है, लेकिन मान लीजिए किसी का CV उनकी वेबसाइट पे या इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे नहीं है, तो उस केस में आप क्या करिए, अपना जो CV है उसको लेकर के जो आपके गूगल ड्राइव है ना, जीमेल अकाउंट के साथ जो ड्राइव होती है उसमें डाल दीजिए।
अब आपका जो वो सीवी है ना वो इंटरनेट पे चला गया। गूगल ड्राइव इज अ इंटरनेट सपोर्टेड प्लेस। अब उसका लिंक आप वहां से कॉपी करके और फिर उसको यहाँ से शॉर्टन करके या क्यूआर कोड बना करके आप अपने जो विजिटिंग कार्ड है उस पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से करके यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इनोवेशंस। आप लोगों ने अगर नाम सुना हो जो एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स हैं या स्मार्ट बुक्स, स्मार्ट बुक तो जरूर सुना होगा, एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स शायद ना सुना हो। बुक को एनर्जाइज कैसे कर देंगे? ऐसे ही करते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाते। बस क्या किया जाता है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है जो रिटन फॉर्म में है, उस रिटन फॉर्म को, उस रिटन फॉर्म के जो कंटेंट है उसको क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पे डाल दिया। जैसे एनसीईआरटी की जो एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें क्या किया गया कि जो कंटेंट, जो बना हुआ कंटेंट है उसको ई पाठशाला करके जो उनकी वेबसाइट है या दीक्षा प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया और फिर उसका लिंक ले लिया गया। उस लिंक को ऐसे क्यूआर कोड बना दिया गया इसी तरह से। और ये हम ही लोगों ने किया, हम जैसे इंसान करते हैं, कोई उसमें बहुत मशीन नहीं लगती है, उसको सिंपली क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। उस जैसे जैसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में वो टॉपिक था, उसके बारे में एक बड़ा अच्छा सा वीडियो है जो मान लीजिए मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। उस वीडियो को ई पाठशाला पे डाला, लिंक लिया, कोड बनाया, ये क्यूआर कोड बनाया और उसको उस बुक के पेज पे जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है वहां पे उसे भी अटैच कर दिया, उसको वहां पे प्रिंट कर दिया गया। अब जो प्रिंट करने कर दिया गया, आपने वो चीज प्रिंट कर दी है, तो जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके पास फोन है, फोन में क्यूआर कोड स्कैनर है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते पढ़ते उसको लग रहा है कि क्या लिखा है मेरे तो समझ नहीं आ रहा, वो चाह रहा है कोई उसको समझा दे, तो वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करे और जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है उसको सुन ले या देख ले। और जो बच्चे सुन नहीं सकते, एनसीईआरटी ने ये तक किया है कि जो ऐसे जो बुक्स हैं उनके ऑडियो बुक्स बनाई हैं और उन ऑडियो बुक्स को फिर साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है और उन सबको उधर डाल करके, वेबसाइट पे डाल करके उसके क्यूआर कोड्स बना करके बुक के साथ पब्लिश कर दिया गया, प्रिंट कर दिया गया। ये एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स होती हैं और ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं आती पकड़ने से, नथिंग एल्स। सिर्फ वो बुक को एनर्जाइज ऐसे किया गया है with the help of different type of resources in the form of QR coding. They are attached, printed, and it is given to the public. So once you are scanning the QR code, you will get a sign language video, or you will get a normal video, or you will get a the link of the ऑडियो बुक जो आपको सुना रहा है। जो बच्चा ऐसा है विजुअली इम्पेयर्ड है, अब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को तो सुन के ही ना समझना है, तो उसके लिए वो वहां पे ऑडियो बुक है। वो बच्चा जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उसके लिए वो वहां पे साइन लैंग्वेज में कंटेंट है जो साइन लैंग्वेज में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। सो इन दिस वे द बुक्स आर मेड एनर्जाइज्ड एंड इवन यू कैन गो फॉर एनर्जाइजिंग योर कंटेंट। कि किसी भी तरह से कंटेंट को आपको एनर्जाइज करना है तो उसके लिए यही टेक्निक यूज की जाती है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गया, ये OER कंटेंट, एक फोटो लिया और इसके बाद इसको एक्नॉलेज भी कर दिया। अब फिर से कुछ लिख देते हैं, अपने से 10-15 लाइन लिखा मैंने और अब मेरा मन कर रहा है फिर से मुझे नेट पर से ही कुछ मिल जाता, कुछ टेक्स्ट मिल जाता, क्योंकि अब मेरे पास जो अपने से लिखने की कैपेसिटी थी, मान लीजिए वो थोड़ी देर के लिए रुक गई है। नाउ आई वांट सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच फॉर विच आई अगेन हैव टू गो फॉर टू सर्च द इंटरनेट। इंटरनेट से सर्च करना है, लेकिन इंटरनेट से कैसे सर्च करना है टेक्स्ट को, वो अब देखते हैं। अगेन मैं जाती हूँ इधर, हाँ, प्लाज्मा, ये वाला प्लेस पे, और इससे मैं ऑल पे चले जाती हूँ। ये मैं ऑल पे चली गई। ऑल का मतलब है क्या हुआ, अभी इसने सारा का सारा तरह का कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया, एवरी टाइप ऑफ कंटेंट, इमेज विमेज सब उसके अंदर इंक्लूडेड है और कॉपीराइटेड नॉन कॉपीराइटेड सब तरह का कंटेंट उस पे मौजूद है। ये जो यहाँ पे जब आपको कोई इसका स्पेसिफिक टाइप चाहिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई PDF चाहिए, PDF का मैंने यहाँ पे सेक्शन लिया और अगेन मैं टूल्स पे गई और यहाँ पे ऑल रिजल्ट्स पे गई और एनी टाइम है ये कि कब लिया गया है, इस तरह का भी चीज मैं
ढूंढ सकती हूँ कि कब लिया गया है। अगर मुझे सच कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बिल्कुल फ्री वाला सिर्फ, तो मैं सिर्फ क्या करूं, यहां से मैं जो फ्री कंटेंट होता है वो प्रोवाइडेड होता है ऑन दी साइट्स ऑफ विकीपीडिया, विकी कॉमन्स, विकी विकी के तमाम तरह के और जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे। मैं यहाँ से इधर इस पे चली गई, ये सीधे इस पे सेल मेम्ब्रेन, इस पे आ गई मैं। सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है जो कि मैं यहीं से फेच कर सकती हूँ। अब मैंने एक ये वाला टॉप पेज खोला जिससे मैं कुछ लेना चाह रही हूँ। ये मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा फ्री वाला है, ये एकदम आराम से लिया जा सकता है, टेकेबल है, CC BY SA होता है इनका विकिपीडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब देखिए मैं यहाँ से अगर इसको क्या ले सकती हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ अपने पेज पे, लेकिन उससे एक दिक्कत हो जाती है जो क्योंकि हम लोग आजकल अब जो क्या बोलते हैं, जितने भी सिमिलैरिटी इंडेक्स चेकर्स हैं वो भी यूज करने लग गए हैं। क्योंकि क्या होता था कि लोग कहीं से भी कुछ भी ले लेते थे और वो फिर पब्लिश कर दिया और प्रॉब्लम हो जाती थी फिर। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि UGC ने बेसिकली ये कर दिया कि 10% से ज्यादा आप सिमिलैरिटी नहीं रख सकते। अब ये 10% सिमिलैरिटी रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। ये जब वो प्लेजरिज्म डिटेक्टर है ना, जब वो चेक कर रहा है, चाहे उरकुंड हो या ड्रिलबिट हो या टर्निटिन हो या आइथेंटिकेट हो, उनको नहीं पता कि ये जो नेट पे पब्लिश्ड है वो OER है कि नहीं OER है। वो सिर्फ ये चेक करता है कि नेट पे है कि नेट पे नहीं, आइदर 0 और 1, बस यही दो ऑप्शन है उसके पास। अब ये क्या होगा कि इवन अगर आप OER से कोई चीज ले रहे हैं तो सिमिलैरिटी इंडेक्स चेकर जो है वो शो कर देगा कि ये सिमिलैरिटी आ रही है नेट पर से। क्योंकि अगर आप इसी चीज को यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे ना, यूं ऐसे कॉपी करेंगे, ये मान लीजिए इतना मुझे लेना है, ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और उधर पेस्ट कर दिया। प्रॉब्लम क्या होगी, ऑल्दो मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ काम, लेकिन सिमिलैरिटी चेकर जो है, जो कि एक मशीन है, वो कहेगा कि आपने लिया है नेट से, और फिर उसको उसको वो तो सिंपली एक परसेंटेज निकाल के दे देगा, उसको कौन समझाने जाए। उसके लिए एक तरीका है जो हमें अप्लाई करना है। अच्छा, एक और बात, लोग ये सोचते हैं कि जो नेट पर है मौजूद, अगर हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो फिर एक्नॉलेजमेंट क्यों दें। नहीं, आपको देना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि आपको आपने नेट पे से लिया है। ऑल्दो आपने उसको इस तरीके से लिया है कि प्लेजरिज्म की कैटेगरी में ना आए, उसमें चेंजेस कर दिए, मैनिपुलेशंस कर दिए, लेकिन आपने लिया तो है ना नेट पर से। नेट पे से नहीं लिया है और अपने से सब कुछ लिखा है तो कुछ नहीं जरूरत है, फिर तो क्यों देंगे, कहाँ से देंगे। लेकिन अगर नेट से लिया है, और नेट से भी आप वहीं से लेंगे जो अलाउ करता है कि ले लो, कहीं भी किसी भी साइट जो कि कॉपीराइटेड साइट है, वहां से आप मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, चेंजेस करके भी नहीं, पैराफ्रेजिंग करके भी उसको कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। आजकल तो सबसे ज्यादा लोग यही यूज कर रहे हैं, पैराफ्रेजिंग। लोगों को लगता है कि हम पैराफ्रेजिंग कर दे दिया हमने तो अभी तो कॉपीराइट खत्म हो गया, नहीं होता खत्म, क्योंकि पैराफ्रेजिंग भी चेक हो जाती है। लेकिन अगर आपने OER साइट को से लिया है कुछ भी और उसमें चेंजेस कर दिए हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इसका तरीका क्या है, कैसे करेंगे, इस पेज से मुझे लेना है कुछ कंटेंट उधर, तो मैं क्या करूं, इसे एक बार मैक्सिमाइज और दबाऊं तो ये हाफ स्क्रीन पे ऐसे आ गया, हाफ स्क्रीन पे ये पेज आ गया जिस पर से मुझे लेना है। और इधर हाफ स्क्रीन पे मैं खोल लेती हूँ अपना वो पेज जिस पे मुझे काम करना है, जिस पे मैं ये आर्टिकल लिख रही हूँ। अब ये करने से ही क्या हुआ कि आधे आधे पेज पे दोनों चीजें आ गई। अब आप क्या कीजिए, रादर देन कॉपिंग एंड पेस्टिंग, बिकॉज वो पूरा प्रोग्राम उठ के आएगा ना, प्रोग्राम उठ के आएगा तो सिमिलैरिटी चेकर्स जो हैं वो पकड़ लेंगे। तो वो सिर्फ उनसे बचना है और कुछ भी नहीं है। उसके लिए आप यहाँ से क्या करें कि अब ये जो कंटेंट है इसको पढ़ते जाइए और टाइप करते जाइए, और उसमें चाहे चेंजेस भी कर सकते हैं थोड़े बहुत, अगर आपको मन करे तो उसमें थोड़े चेंजेस कर दीजिए, उसमें से कुछ पार्ट्स रिमूव कर दीजिए, कुछ ऐड कर दीजिए। एंड यहाँ से मान लीजिए मैंने ये द सेल मेम्ब्रेन से लेकर, मैं थोड़ा सा इसको
शॉर्टन कर रही हूँ, यहाँ पे आके मान लीजिए मैंने ये यहाँ तक ले लिया, टेम्परेचर्स तक। ये टेम्परेचर्स तक, ये था ना यहाँ, ये वेरियस टेम्परेचर्स लिखा हुआ है, यहाँ तक मैंने यहाँ पे ले लिया। ये आप अज्यूम कर लीजिएगा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इस पेज से ले लिया। अब ले लिया मैंने, सिमिलैरिटी चेकर्स नहीं इसको पकड़ेंगे क्योंकि मैंने इसको टाइप किया है, हल्का फुल्का चेंज भी अंदर कर दिया है। लेकिन क्योंकि मैंने एक OER साइट से इसको यहाँ पे मॉडिफाई करके यूज किया है, रिपर्पस किया है, तो एक्नॉलेजमेंट मुझे देना है। अभी भी एक्नॉलेजमेंट मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। अब देखिए एक्नॉलेजमेंट करने के तरीके, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसी पेज पे लास्ट में आप एक सेक्शन ऐड करें, वेब रेफरेंसेस, ये किया आपने, और अब अगेन क्या करेंगे, यही लिंक जो था इसे कॉपी कर लीजिए और इसको इधर पेस्ट कर लीजिए। ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने, ये पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वेब रेफरेंसेस, मान लीजिए इसी पेज में मैं फिर इसके नीचे कुछ लिखती हूँ, हाँ, और ये फिर अपने से कुछ लिख रही हूँ, और उसके बाद फिर इसी पेज पे मैं एक किसी और साइट से जो OER साइट है वहां से टेक्स्ट लेकर के इधर डाल देती हूँ। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा मैंने खुद लिखा है और कौन सा किसी और साइट से लिया है, OER साइट से लिया है? उसके लिए मुझे सोर्स को एक्नॉलेज करने के बाद भी इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे। इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1। आपने देखा भी होगा ये बहुत सारी जगहों पे ऐसे 1 2 3 करके APA स्टाइल में या जितने भी स्टाइल मैनुअल्स हैं उसमें ये लिखा होता है। ये ऐसे करके आपने इसको नंबर 1 लिख दिया, और अब यही 1, क्योंकि ये जो जगह है, ये वाला जो पैरा है, इस पैरा को लिया था ना, यहाँ पे अगेन इसी 1 को आप लिख दें और इस 1 को ऐसे कॉपी करके इधर सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए, एंड यू आर डन। This is the first way in which you are going to give the acknowledgement. तो ऐसे करके you can use the material which is OER, विकिपीडिया पे है तो वो टेकेबल है, उसको आपने देखा, उसको पढ़ा और फिर आपने अपने हिसाब से उस कंटेंट को मॉडिफाई करके यूज करा। नो प्रॉब्लम एट ऑल इन यूजिंग द मटेरियल, बिकॉज OER है, बनाया ही इसीलिए गया है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी है। तो ये एक्नॉलेजमेंट दिया आपने, ये तो हुआ पहला तरीका। अब देखिए एक तरीका, अब इसी तरह से अगर दूसरा पेज है कोई जहां से आप ले रहे हैं, मान लीजिए मैं इसमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये पेज पे चले गए। अब देखिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का ये पेज है, यहाँ से मैंने यहाँ से कुछ लिया था, अब मैं इसको भी एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ से इसका लिंक लूंगी और ये लिंक को मैं इधर नंबर 2 पे पेस्ट कर देती हूँ। ये नंबर 2 पे पेस्ट किया, इसको नंबरिंग कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2। सो इस तरह से जो आपका सोर्स है उसको, और यहाँ जहाँ पे भी मान लीजिए ये जो 2 लाइन लिखी है वो इस पेज की है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिख दूंगी, इसको लिया और इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। एक ही पेज से मल्टीपल टाइम्स अगर मैंने मटेरियल लिया है, जैसे ये जो सोर्स नंबर 2 है, इससे मान लीजिए मैंने यहाँ भी कंटेंट लिया है और मैंने ऊपर भी कहीं लिया है, सपोज यहाँ पे भी लिया है, तो मैं यही स्क्वायर ब्रैकेट जो 2 लिखा था, सॉरी, वही फिर से ऐसे लेके इसको, तो पता चल जाएगा कि ये जो जहां जहां 2 लिखा हुआ है उसका सोर्स कौन सा है, ये वाला है, ये दिस वन इज द सोर्स। सो ऐसे करके भी एक्नॉलेज द सोर्स। सो नाउ अभी क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने ये जो एक पूरा डॉक्यूमेंट था, इसको बहुत सारे OERs की मदद से बनाया है। बहुत सारे OERs को यूज करके वी हैव क्रिएटेड a document. This document is something which is created with the help of OERs. अभी ये अपने आप में OER नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं कोई लाइसेंस तो नहीं दिया गया है इसको, कहीं लाइसेंस तो कोई दिख नहीं रहा, इसको हमें एक लाइसेंस देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ये आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल को मैं OER
में तब्दील करना चाहती हूँ, इसको OER में चेंज कर देना चाहती हूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट अगर है तो उसमें मैं एक इंसर्ट में जा करके एक फुटर इंसर्ट कर देती हूँ। ऐसे फुटर पे क्लिक करेंगे, जो सा टाइप आपको अच्छा लगता है। हम लोग नॉर्मली पेज नंबर के लिए फुटर यूज करते हैं, तो मैंने ये वाला स्टाइल मान लीजिए यूज कर लिया। अब फुटर को इंसर्ट करने के बाद जो वो लाइसेंस की लाइन थी ना, वो लाइन पूरी लेकर के या वो बॉक्स को पूरा लेकर के या दोनों में से कोई एक लेकर के इधर हमें पेस्ट कर देना। मैं करके दिखाती हूँ। मैं इस पेज पे चले जाती हूँ, ये वाला जो पेज था, इसके लिए हम कहाँ से पहुंचे थे, जो क्रिएटिव कॉमन्स वाला जो साइट है वहां से भी जा सकते हैं। इसको लिख भी दे सकते हैं, बॉक्स को भी उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो क्रिएटिव कॉमन्स वाली साइट है, मैं उस पे आ गई। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, किसी पे भी क्लिक करेंगे, मैं एक पे क्लिक करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये उसी पेज पे आपको लेके चला जाएगा जहां से आपने कॉपी पेस्ट करना है। अब आप यहाँ से इसे लेके ऐसे कॉपी कर लिया, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं वापस आ गई इस वाले पेज पे। किसी का माइक ऑन हो गया, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। अब यहाँ पे मैं इस वाले जहाँ जो मैंने पिक्चर इंसर्ट किया है उसमें इसे पेस्ट कर देती हूँ। अभी ये बहुत बड़ा साइज है, तो मैं इसका साइज छोटा कर लेती हूँ। ये मेरे ऊपर है कि मैं इसका साइज कितना रखना चाहती हूँ। इसका साइज मैं जितना छोटा चाहे कर लूँ। ये मैंने इसका साइज छोटा कर लिया। इस तरह से करके आई हैव एडेड द लाइसेंस वाला कोड, जो लाइसेंस का कोड था ना, CC/NC/ND, वो मैंने इधर पे ऐड कर दिया। अगर मैं इसमें से ये जो लाइन लिखी हुई है इसको रिमूव भी कर देती हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतने से काम चल जाता है। या मैं ये कोड रिमूव कर दूं, सिर्फ लाइन रहने दूं, उससे भी काम चल जाएगा। अगर आप अपने मतलब टाइप भी कर देते हैं ना, CC/NC/ND, ऐसे टाइप भी कर देते हैं तो भी काम चल जाएगा। और बस ये काम खत्म हो गया आपका। अब आप वापस आ जाइए डॉक्यूमेंट पे। फुटर के अंदर हर पेज तो नहीं है बेटा, की हुई आएगी। किसी का माइक, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। अंकिता जी, आपका माइक ऑन हो गया है, माइक ऑफ कर लीजिए। मैं जो बता रही थी, ये इस तरह से करके जो लाइसेंस की लाइन है वो मैंने, जो इसका फुटर है, इस डॉक्यूमेंट का फुटर, उसमें इंसर्ट कर दी है। और इस तरह से करके मैंने पूरा ये जो डॉक्यूमेंट था इसे कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर OER document. Just by adding this license line, this content is converted into an OER content. अच्छा, मैं एक तरीका और बताने वाली थी टेक्स्ट को एक्नॉलेज करने का, वो रह गया, वो भी बता देती हूँ। एक तो ये तरीका था कि स्क्वायर ब्रैकेट में 1 आपने लिख दिया और नीचे उसका जो साइटेशन है वेब रेफरेंसेस में डाल दिया। मान लीजिए कोई ऐसा कंटेंट है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, दैट यू हैव रेफर्ड टू अ वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, like suppose you have referred to encyclopedia of science, or maybe you have referred to economic survey of India, or any very important site, and you wish to place this information in a highlighted way कि मैंने वहां से लिया है। उस केस में आप क्या करें, इंसर्ट पे जाके एक ये टेबल जो है, टेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ टेबल का सिंगल सेल सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल का सिंगल सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। टेबल का सिंगल सेल सेलेक्ट करने के बाद ये एक बॉक्स सा बन के आपके सामने आएगा। ये जो बॉक्स है, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ बॉक्स इन एनी फाइल, चाहे वर्ड फाइल हो या कोई भी तरह की फाइल हो। वर्ड कोई शीट है या फिर आपका PPT है, उसमें बॉक्स अगर आपको क्रिएट करना है, सिंगल बॉक्स, उसके लिए ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप सिंगल सेल ऑफ अ टेबल सेलेक्ट कर लें। अब क्योंकि ये जो बॉक्स होता है ना, ये डायनेमिक बॉक्स होता है। अगर ये बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो 3 पेज का भी होगा तो भी ये डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो उस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, ऐसे पूरा बॉक्स सेलेक्ट किया और आप इसको पूरा कलर कर सकते हैं। इसको कलर कर दीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा। नहीं होगा कलर,
ना, ये यहाँ से बॉक्स को सेलेक्ट करके इधर से इसे कलर कर सकते हैं। ये ऐसे बॉक्स कलर हो गया। और अब मैं इसके अंदर ये जो मटेरियल है, यही मटेरियल ले लेती हूँ। इस मटेरियल को मुझे बॉक्स के अंदर डालना है। ये यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया। और अब इसे मुझे बॉक्स के अंदर जो मटेरियल डाला है उसकी एक्नॉलेजमेंट भी वहीं पे देनी होती है। वहां पे एक्नॉलेजमेंट देने का मतलब ये यहाँ पे SOURCE सोर्स लिख दिया। और उसके बाद जो सोर्स है ना, अब इसका सोर्स यहाँ पे ये है, ये रहा। दिस सोर्स आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वन। ये ऐसे करके मैंने कॉपी कर लिया। शॉर्टनिंग भी करके कर सकते हैं और पूरा ले लेते हैं। ये गूंदना है, गूंदना है उसको थोड़ा सा लेकर के, मैं देखो गूंद देना है। So like in this box we have added the content जो हमने नेट पर से लिया था, और उसको स्पेसिफिकली हमें हाईलाइट करके एक्नॉलेज करना था। तो वो यहाँ पे उसको बॉक्स के अंदर कर दिया। अच्छा, ये बॉक्स को चाहे तो ना जितना भी चाहे साइड में कर देते हैं, बड़ा अच्छे से आर्टिकुलेटेड मटेरियल बन जाता है। बॉक्स को जैसे भी वे में आप चाहे मैनेज कर सकते हैं। और जो इसमें मटेरियल को ऐड किया है तो इस तरह से जो OER कंटेंट है उसको सो सॉरी, बार बार माइक ऑन। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। डॉक्टर मुनींद्र, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, द वे इन विच वी हैव जस्ट क्रिएटेड द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट हमने जो अभी क्रिएट किया है, इसको इस पूरे डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया, OER को यूज किया और OER को फिर एक्नॉलेज किया, सोर्स को एक्नॉलेज किया। ये करने से हमने एक OER को क्रिएट भी कर दिया है, और इसको अब हम चाहे जहां भी दे सकते हैं फॉर पब्लिकेशन। वो OER के फॉर्म में पब्लिश होगा। जब हम किसी वीडियो को एक्नॉलेज करना चाहते हैं, तो मैंने आपको दिखाया था वीडियो को कैसे एक्नॉलेज करते हैं। अभी जो YouTube पे जो मेरा एक वीडियो खोला था उस पे दिखाया था कि लास्ट में जो समरी पेज होता है, समरी पेज पे लिख दीजिए वो लाइन को, और जो डॉक्यूमेंट है, जो तरह का भी आपने लाइसेंस चूज किया है उसके बॉक्स को और लाइन को लिख दीजिए। अगर आप कोई ऑडियो फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ऑडियो फाइल में क्या करेंगे, पूरा के बाद जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद यू नीड टू से द सेम थिंग। जो वो पूरा का पूरा लाइसेंस का लाइन है ना, उसको पढ़ दीजिए। क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन यूज अलाउड CC by SA लाइसेंस, दिस कंटेंट इज रिलीज अंडर। अगर आप ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं, और फिर उसको पूरा पढ़ दीजिए, वो भी पूरा साथ में ऐड हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, साथ में जो लाइसेंस की लाइन है वो भी उसके साथ ऐड हो गई, रिकॉर्ड हो गई। अब आपका जो वो ऑडियो है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ OER ऑडियो। फोटोग्राफ कोई है, फोटोग्राफ में साइड में नीचे छोटा सा आप वो जो बॉक्स है उसको ऐड कर लीजिए। कोई आप इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उधर भी इस बॉक्स को सिर्फ इन्फॉर्म पीपल दैट दिस मटेरियल इज रिलीज अंडर सो एंड सो लाइसेंस, वो चीज आप वहां पे मेंशन करेंगे। पीपीटी बहुत आजकल लोग स्लाइड शेयर पे डालते हैं अपनी। अगर उसको पीपीटी को OER में कन्वर्ट करके डाल रहे हैं, मतलब बस सिंपली एक उसके अंदर लाइसेंस का वर्ड ऐड कर देना, जो सा भी आपके लिए प्रेफर्ड लाइसेंस है उसको, उसका बॉक्स या फिर उसको टाइप कर दीजिए, उन वर्डिंग्स को, देन शेयर कीजिए, तो वो OER। अब एक चीज और, मुझे आपको ये भी बताना था ना कि कुछ कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे you can offer the OER content, and if it is published, it comes in public domain, you can even go for API scoring। आपको API स्कोर मिलता है।
जो भारत सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा है, स्वयं है, इन पे तो आपको, अगर आपने कंटेंट डाला है तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और हर एक ई कंटेंट के ऊपर 2 मार्क्स होते हैं। अगर आप अपना जो एपीआई का प्रोफॉर्मा है वो देखते हैं, अगर वो प्रिंट पब्लिश हो जाता है तो किसी भी फॉर्म में पब्लिश हो गया तो somebody's mic is still on। गुरुचरण जी, आपका माइक ऑन है जी। सो इसके अलावा दीक्षा प्लेटफॉर्म है, या आप अगर जो विद्या मित्र है उस पे अगर आप देते हैं कंटेंट, पीएम ई विद्या चैनल्स जो हैं उन पे आप कोई कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो फिर उन वेबसाइट पे आ जाता है। या आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो ओईआर प्रोवाइडर है, आप अपने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उस पे भी अगर कंटेंट को ओईआर में कन्वर्ट करके उधर पब्लिश करने दे देते हैं, वो अगर वहां पब्लिश हो जाता है, ओईआर कंटेंट है आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पब्लिश हो गया है, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम फॉर योर एपीआई स्कोर्स। इसके अलावा जो एजुकेशन के लोग हैं, एनसीटीई जो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उनका भी एक ओईआर पोर्टल है जिसपे यू कैन गो एंड यू कैन गिव योर कंटेंट which can be used by many of the people, and that is also going to fetch you a lot of marks। वही हर एक कंटेंट के ऊपर 2 नंबर। तो ऐसे सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या आपका इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट है, उस पे अगर आप ओईआर कंटेंट डालते हैं, यू कैन गेट 2 marks each for every e content in your API scores, and there is no any कोई एक बेंचमार्क नहीं है कि 50 नंबर तक ही हासिल कर सकते हैं। ई कंटेंट डेवलपमेंट में एम्पल स्कोरिंग होती है, कोई भी वहां पे लिमिट नहीं है कि बस उतना ही आप ले सकते हैं। तो अगर आप यू आर in the process of e-content creation, if you are very much like good in creating e-content, then there will be no any dearth of marks, कोई कमी ही नहीं होगी numbers की। तो this is a way in which even you can create material, and your students are going to get benefited, and as well you are going to get benefited by the gaining of marks। So I think this much is enough। अभी 3-4 मिनट बचा है, अगर किसी को कुछ पूछना है जिन चीजों पे मैंने आज बात की है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इज देयर एनी क्वेश्चन? Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. So कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम। या जी। जैसे अगर सपोज मैं बुक्स अगर एडिट करता हूँ या लिखता हूँ, जी जी जी। जैसे आपने कहा कि विकिपीडिया ओपन सोर्स है, हाँ, इसमें हम कॉपी करके थोड़ा सा चेंज करके और उसको बाद में उसको सोर्स को लिख दिया जाए, तो सोर्स को रेफरेंस में लास्ट में लिखेंगे पेजेज में, लास्ट में बुक्स खत्म हो गई, मैं रेफरेंसेस बाद में लिख दूं, लास्ट में लिखा जाता है। तो ये ऐसे में काम चल जाएगा या कुछ और कुछ करना पड़ेगा मुझे बचने के लिए? कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जो आपने अभी बताया ना सर, आप विकिपीडिया से या कोई भी इस तरह की जो ओईआर साइट्स हैं उनको ओपन कीजिए, आधे स्क्रीन पे ओपन कीजिएगा, आधे स्क्रीन पे जहां लिखना है वहां ओपन कीजिएगा, और आप फिर उसको देख देख करके आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। उसको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है कि जो उसका पीछे का प्रोग्राम है वो भी कॉपी पेस्ट हो जाता है, और फिर वो सिमिलैरिटी इंडेक्स चेकर्स उसको पकड़ लेते हैं, और वो फिर वो तो मशीन है ना, वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं। सो वो उनको ये नहीं पता कि ये ओईआर से लिया गया है या नॉन ओईआर से लिया गया है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम, वो जो सिमिलैरिटी इंडेक्स चेकर्स हैं, आपको ये काम करना है कि आधे स्क्रीन पे ओईआर वाला मटेरियल खोलना है और आधे पे अपनी बुक जहां लिख रहे हैं वो खोलना है, और आप टाइप कर लीजिए, उसको चेंजेस वेंजेस भी कर सकते हैं तो कर दीजिए, और उसका जो सोर्स है उसको एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए, बस। और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फर्नीचर में, बिकॉज का तो पर्पज ही यही है कि उसको लिया जाए। जी मतलब मैम किसी बुक से जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं, मैं उनसे भी मान लीजिए कुछ मटेरियल को कॉपी करता हूँ, लेट्स सी मान लीजिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड बुक है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल दिया प्लगइन मेम्ब्रेन का जी या सेल मेम्ब्रेन का,
अगर मैं अपने अपने तरीके से लिख रहा हूँ और कोई स्टैंडर्ड बुक से उठा रहा हूँ और अपने नहीं हाथ ले सकते सर, नहीं ले सकते। स्टैंडर्ड बुक से जो प्रिंटेड बुक है, अब या तो आप उसका जो बुक का के जो प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं ना, उस पे ना डिटेल्स लिखी होती हैं कॉपीराइट की। आप देखिए कॉपीराइट डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है, वो पब्लिशर के पास होता है उसका राइट। अगर नहीं होगा ना, अगर वो बुक OER होगी तो वहां लिखा रहेगा इट्स एन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स या इट्स एन OER ओपन एक्सेस, ऐसे करके कुछ ओपन वर्ड लिखा होगा। फिर उसका मतलब है कि आप आराम से ले सकते हैं। ऐसी बुक अगर है, जैसे सिमका की जो किताबें हैं ना, जो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग वाली जो बुक्स हैं, COL सिमका, उनकी बुक्स में शुरू में ही लिखा रहता है, आप कोई भी बुक उनकी उठाइए, लिखा रहेगा शुरू में CC BY लाइसेंस के तहत रिलीज है। उस बुक से आप जो मर्जी लीजिए, बुक का रेफरेंस दे दीजिए। लेकिन जो ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स है ना, लेलिंजर की बुक है, आप वो उनका कॉपीराइट उनके पब्लिशर के पास है, तो वहां से आप नहीं ले सकते। लेकिन देखिए क्या उसका भी सोल्यूशन है। साइंस है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जहां पे अब जैसे जो आपका डिक्सन एंड जॉली का जो मॉडल है DNA का, मुझे या स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर है, एल्गी है वो, उस एल्गी को जिसने ढूंढा था उसका कॉपीराइट होगा ना उस पे, तो उस आइडिया पे कॉपीराइट नहीं है। लेकिन जब उसको सेज ने अपनी किसी किताब में ड्रॉ करवाया किसी से और उसको या फोटो खिंचवाया और उसको वहां पे पब्लिश किया, तो अब सेज का कॉपीराइट उस फोटो पे हो गया, उस फोटो पे हो गया, ना कि स्पाइरोगाइरा के स्ट्रक्चर पे हुआ। तो आप क्या करिए कि आप खुद बना लीजिए स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर। ये सेम क्वेश्चन मुझे याद आता है आज से कोई 1 साल पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के किसी टीचर ने, मतलब उधर के साउथ के ही किसी टीचर ने मुझसे पूछा था, बॉटनी के टीचर थे, मैं भी बॉटनी से ही हूँ, तो मैंने फिर उनको बताया था और उन्होंने बाद में काफी बार मुझसे फोन पे भी बात की, क्योंकि वो एक बुक लिख रहे थे और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उनको देने थे, बुक में लिखने थे। वो बताते थे कि जो भी हैं स्ट्रक्चर्स वो सारे के सारे किसी किसी बुक में है, या जो OER साइट्स हैं उस पे सही मिल नहीं रहा है। सो व्हाट शुड आई डू? सो व्हाट आई the solution which I provided is that you can draw it on your own. You see the structure, the idea, the structure, that particular image which is created by somebody, उस image पे तो copyright उसका है, उस institution का, लेकिन उस structure पे नहीं है। तो आप खुद से draw कर लीजिए और उसके बाद उस इमेज को आप अपनी किताब में यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हम लोग ऐसे ही काम कर सकते हैं, क्योंकि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम क्रिएट कैसे कर लेंगे? अब गांधी जी की फोटो है, गांधी जी को मैं कहाँ से अभी ला सकती हूँ उनकी फोटो खींचने के लिए? तो जाहिर सी बात है, या तो मैं उनको स्केच करूं, जब मैंने उनका फोटो स्केच किया, उनको मैंने डायग्राम ड्रॉ करा, तो अब वो मेरा फोटो हो गया, मेरा बनाया हुआ फोटो है जो गांधी जी का है, तो मैं उसको अपने कंटेंट में यूज कर सकती हूँ। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन मैनेज। ओके मैम, मैं एक लास्ट क्वेश्चन है मैम। जी। एक्चुअली आई एम आल्सो फ्रॉम द बॉटनी डिपार्टमेंट। ओके ओके। तो मैम ये पूछना चाह रहा था कि सपोज अगर बुक से स्टैंडर्ड बुक है और स्टैंडर्ड बुक का जो रियल कंटेंट है मैं उसको अपने लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, क्या वो मेरा हो जाएगा या उन्हीं का रहेगा? सर उसमें भी अगर कॉपीराइटेड कंटेंट है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी अगर लिखते हैं ना, तो या तो उसको पूरा का पूरा एकदम अपसाइड डाउन कर दीजिए, एग्जैक्टली सेम वे में नहीं लिखिए, तब जाके होगा कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के केस में। बट अगर किसी के मान लीजिए रेफ्लेक्शंस है, सपोज किसी के रेफ्लेक्शंस है, रेफ्लेक्शंस के केस में ये चीज नहीं आती है, लेकिन जो साइंस का कंटेंट है, साइंस के वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अब सेंट्रल डॉगमा है हमारा, सेंट्रल डॉगमा के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन सेंट्रल डॉगमा का जो एक्सप्लेनेशन अगर इरम खान ने किया है उस पे हो सकता है, अगर सत्येंद्र जी ने कर दिया तो उस पे उनका कॉपीराइट हो जाएगा। तो उसको आप अपने वे में एक्सप्लेन करिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के आइडियाज को आप नहीं लें, आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ले लीजिए और फिर उसको अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट कर दीजिए। अगर किसी के आइडियाज को लेना है तो यू कैन सर्च फॉर द OER सोर्सेज, OER सोर्सेज को सर्च करिए और फिर उन आइडियाज को आप ले सकते हैं with the acknowledgement. Fine. Okay ma'am, thanks a lot ma'am. Okay, so if there are no more questions, then we can close the session for today. I have to see you again, I think on 21st. Us din I will be talking about the tools and those techniques which can be used for
मेकिंग द टीचर्स मोर इफेक्टिव टीचर्स, उनका जो लाइफ है उसको, उसके जितने भी काम हम लोग करते हैं उनको आसान करने के लिए जिन टूल्स को आई personally use, I am going to talk about those tools on 21st. So by then, thank you so much. आप लोग का थैंक यू मैम। बहुत अच्छा रहे, यही उम्मीद करती हूँ। ओके, गुड बाय। Thank Okay, you, ma'am. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.